Good afternoon friends. I welcome you all on my YouTube channel which name is Effort Foundation Classes. As you already know, today we started with a new chapter which name is Rock. Okay. And I have a message for students who are new on my YouTube channel. First you have to watch the previous 3 lecture. In previous 3 lecture I complete the basics of physical geography in a comprehensive manner. The upcoming important topic like atmosphere of our earth, interior of our earth, exterior of our earth, wind formations and these all important topic you can only understand if you have the knowledge of basics of geography. So first go through the first 3 lecture. Let's started with the today's lecture. So what is a rock? Rock is a material which constitute earth and its crust. Or this material can be hard like granite, hard or coarser like granite, or weak like clay, weak or fine like clay. So now you have doubts in your mind, what is a crust? So let's see what is the crust. So this is the basic definition of rock. So we need a scientific definitions to define the rock. So first we take the structure of our earth. That's the structure of our earth. Students. And the circle which I mark with the help of green marker is atmosphere. As you already know, our earth is surrounded with the atmosphere, and the outermost part of our earth which is in direct contact with the atmosphere is called as crust. And this layer of our earth constitutes mountains, rivers, glaciers, deserts and forest. All relief feature is present on the crust part of our earth. Next to crust, inside the interior of our earth is a mantle. And the innermost part of our earth is called as core. All these layer of our earth, outermost, crust and inner mantle and cores, these all are made up of rock. Crust is also known as lithosphere, and lithos literally mean rock, so it also known as rock sphere. Students. And crust is also known as Sial, means
It's contain silica and aluminium. Okay. Next to crust, which is known as mantle, also known as sima, which mean it's made up of silica and magnesium. Okay student, and the innermost part of our earth is known as core, which is also known as Nife, which mean it's made up of nickel and iron. The innermost layer, which is also known as core, is in molten magma state. Mean lava, also known as means liquid, in liquid state or highly viscous. Okay student, so as you go down inside our earth, temperature and pressure goes on increasing. Okay, so as our body is made up of different major organ like brain, kidney, stomach, lungs, heart, and so these major organs of our body combine to form our body, and these organs is further made up of different kind of cells, like our brains is made up of neurons, our kidney is made up of nephrons, and our stomach is made up of different type of cells which produce acids and enzyme which further help us to digest the food. ऐसे ही जो हमारी रोक है which is made up of different kind of minerals, and minerals like aluminium, silicones, magnesiums and iron and nickels, and these minerals is further made up of different type of elements, as our body is made up of different kinds of cells. So smallest component of our body is cells, and smallest component of our rock is element. Okay, let's understand it with an example, and don't worry about the language of this course because I also explain in Hindi. Okay, so our earth, which is made up of rock, and rock is further made up of 2 to 3 minerals, and our mineral is made up of elements. So smallest component of our rock is element. So I also says the earth is composed of our composition of our elements, and I also say the earth is composition of different type of minerals. Okay, so let's understand rock with a appropriate example. So I take granites, granite is a igneous rock. Okay, in today's lecture we also see what is igneous rock, metamorphic rock और sedimentary rock. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि sedimentary rock क्या है, igneous rock क्या है और metamorphic rock क्या है. So granite, which is a rock, is a form of 2 to 3 element. So जो ग्रेनाइट्स के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट क्या है, क्वार्ट्ज, सेकंड फेल्ड्सपर, एंड लास्ट वन इज बायोटाइट्स, and each molecule minerals is made up of 2 to 3 elements. So in quartz we have 2 elements. First is silicon
and oxygen. And in feldspar we have silicate of aluminium, magnesium, sodium and iron. Okay, biotite is made up of iron and mica. So 2 to 3 element like silica, silicon and oxygen combine to form one molecule like quartz, and 2 to 3 minerals like quartz, feldspar and biotites combine to form rock, which is granite. So hope you understand with this example how our earth is formed, okay, with different minerals and elements. So आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी अर्थ है जो रॉक से बनी है, वो रॉक है वो कैसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ मिनरल्स और एलिमेंट से मिलकर बना है. सो आवर अर्थ एज ए होल and the outermost portion which is known as a crust is made up of different type of elements, different type of 8 major element. Okay, let's see 8 major element which constitute earth. Okay student, and 8 major element which constitute outer portion which is a crust of our earth. Okay, हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. ओके, first one is iron, next one is oxygen, and then silicon, then magnesium, then sulfur. Okay, not sulfur, then nickel, then sulfur, then calcium, and the last one is aluminium. So our earth is made up of these 8 major element. With the help of these 8 major element, and the 8 major element which constitute our earth outer layer which is a crust, and we also known as a lithosphere. Okay, first one is oxygen, then next to oxygen is silicon, then aluminium, then iron, magnesium, calcium, potassium, not potassium, sodium, and last one is potassium. Yes, so let's see how examiner asks the questions. Okay, so यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच हेल्प टू कॉन्स्टिट्यूट द वोल अर्थ. सो पहला दे दिया जाएगा जैसे मैग्नीशियम, सेकंड दे दिया जाएगा ऑक्सीजन,
third calcium, and fourth one is aluminium. ओके स्टूडेंट, हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो मोस्ट अब्यूडेंट क्या है? ऑक्सीजन है. उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम है जो नंबर 1 पे है. उसके बाद क्या है? कैल्शियम है, एंड देन आयरन, देन एल्यूमिनियम. हमें ऐसे अरेंज करना है इसको एग्जामिन. सो हमें इसे इसी ऑर्डर में मेमोराइज करना है. ओके स्टूडेंट. सो बिलियंस ईयर एगो हमारी अर्थ क्या थी? एक फायर की बॉल की तरह थी, ठीक है ना. इसको मिलियंस ईयर लगे ठंडा होने में, जिससे क्या हुआ, हमारी समहाउ ये ठंडी हुई और हमारी अर्थ को एक कवरिंग मिली जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसने हेल्प किया सन की यूवी रेडिएशन को डायरेक्टली अर्थ पर पड़ने से, जिससे क्या हुआ, अर्थ पर लाइफ फॉर्म हुई. ठीक है स्टूडेंट. सो जियोलॉजिकली स्टडी की गई हमारी अर्थ की, तो हमारी अर्थ पर 2000 मिनरल्स हैं विच हेल्प टू कॉन्स्टिट्यूट, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक. सो क्या ये पॉसिबल है? आई मीन 2000 मिनरल्स को याद कर सके? नो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉसिबल है. ओके, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज यूएसए में जो रॉक प्रेजेंट है उसमें 90 मिनरल्स है, और जो इंडिया में रॉक है उसके अंदर 50 मिनरल्स है, और जो अफ्रीका के अंदर रॉक है उसके अंदर 60 मिनरल्स है. बट जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स इन रॉक को फॉर्म कर रहे हैं, इनके अंदर 12 कॉमन मिनरल्स हैं. जो प्रेजेंट है इस रॉक के अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी. सो दिस 12 कॉमन मिनरल्स इज ऑल्सो नोन एज रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. And these 12 common rock forming minerals are made up of 8 major elements. तो उनको देख लेते हैं हमारे क्या हैं. सो फर्स्ट है आयरन, मैग्नीज, आयरन के बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ओके, देन निकल. उसके बाद क्या आता है? सल्फर, कैल्शियम, एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम. सो दीज 12 कॉमन मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल और हेल्प इन रॉक फॉर्मेशंस, एंड दीज 12 कॉमन मिनरल्स इज मेड अप ऑफ 8 मेजर एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट. सो जो मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं. एट मेजर ग्रुप ऑफ मिनरल्स. सो फर्स्ट क्या है? सिलिकेट is a group of minerals. Then second one is carbonate. And then sulfides. And the last one is metal. Okay. So sulfide
के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो 90% ऑफ रॉक प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ is made up of silicate group of minerals. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलिकेट इंपॉर्टेंट हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिलिकेट ही फॉर्म कर रहा है रॉक को, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। सो हम इनको भी स्टडी करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। इन सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स वी हैव 3 मिनरल्स। फर्स्ट वन इज quartz, second one is feldspar, and the last one is ferromagnesium. Silicate is most important rock forming group of minerals. Okay, सो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन। एंड क्वार्ट्ज इज द हार्डेस्ट minerals among the all minerals present in silicate group. ये हार्डेस्ट है, तो इसको इजीली वेदर नहीं किया जा सकता, मतलब ये इजीली इरोड नहीं हो सकता फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से। ओके, सो इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट क्या है? यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, and quartz is also used in watch making. Industry. Okay student, let's see the second minerals of silicate group, which is feldspar. Feldspar is most abundant and most important mineral which help to form the rock. सो फेल्ड्सपर मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स है सिलिकेट ग्रुप का, जो हेल्प करता है रॉक फॉर्मेशन में, और ये एब्यूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यही मिनरल्स पाया जाता है। सो इकोनॉमिक ये क्या है? ये वीक होगा स्ट्रक्चरली। ये क्या वीक होता है? तो वीक है, ये इजीली वेदर हो जाता है केमिकल और फिजिकल वेदरिंग से।
केमिकल वेदरिंग का मतलब है जब ये आउटर एटमॉस्फेयर में वाटर और एयर की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इजीली इरोड हो जाएगा। और फिजिकल वेदरिंग का मतलब है फिजिकली हम फोर्स लगा के, मतलब फिजिकल इरोजन एजेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइक रिवर एंड विंड, वो इजीली इरोड कर सकते हैं किसको, रॉक इन विच जिसके अंदर फेल्ड्सपर एब्यूडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा जिस रॉक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फेल्ड्सपर। फर्स्ट क्या है, यूज्ड इन सिरेमिक इंडस्ट्री। सो सिरेमिक इंडस्ट्री क्या है, आपके घर में कप होंगे, प्लेट्स होंगी, वो किससे बनी होती हैं, फेल्ड्सपर से बनी होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट यूज क्या है, ऑल्सो यूज्ड एज फिलर in paint. And third one, it's also used in glass making. Okay, now the last minerals of silicate group. Which one is, last one is ferromagnesium. Okay, so what is the ferromagnesium? When silicon and oxygen combined with iron and magnesium, it's converted into ferromagnesium. जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स है इज हाईली प्रोन टू केमिकल वेदरिंग। मीन्स जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये इरोड हो जाएगा। एंड द सोयल विच कंटेनिंग फेरोमैग्नीशियम एज ए मिनरल्स, जो मतलब रॉक है जिसमें हाईली बहुत ज़्यादा मात्रा में फेरोमैग्नीशियम होगा वो हाईली वीक होगा, सो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर बिल्डिंग पर्पस, लाइक in construction activities like making buildings, dams. Okay, so we done with the silicate groups of minerals, and our next group of mineral is carbonate. And carbonate group of minerals is also highly prone to chemical weathering. Okay, and important minerals of carbonate group is calcite, which is present in limestone and marbles. अब जब rock which contain carbonate as a mineral came in contact with water or atmospheric air, it easily erode and converted into attractive structure like caves. अब जो हमारे माउंटेन हैं
वो जिन कार्बोनेट्स ग्रुप ऑफ रॉक से मिलकर बने होते हैं। जैसे ही वहाँ से कोई पानी गुजरता है बहकर, तो वो ईजिली इरोड हो जाता है कार्बोनेट्स, एंड वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाता है और हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, केव लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। और रॉक विच कंटेनिंग कार्बोनेट्स एज ए मिनरल्स इज हाईली डेंजरस। सो हम उस पर बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, डैम्स नहीं बना सकते, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। सो सपोज हमें कहीं पर डैम्स बनाना है हिली एरिया में, तो हम वहाँ की सोइल को टेस्ट करेंगे। अगर जो उसकी सोइल्स में ज़्यादा मात्रा में कार्बोनेट्स होंगे या फेरोमैग्नीशियम होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम डैम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा वो ईजिली इरोड हो जाएगा, ठीक है ना। सो जो हम डैम की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पर हो नहीं सकती। ओके, so let's see the let's see the next mineral containing group, which is sulfides. सल्फाइड्स के अंदर क्या है, पायराइट्स एंड आयरन सल्फाइड। ओके, when pyrites and iron sulfides combined with when iron and sulfide when sulfides and iron combined with atmospheric oxygen, okay, when pyrites and iron sulfides came in contact with atmospheric oxygen, it's converted into ferric hydroxides or sulfuric acid. And sulfuric acid. Okay, and this ferric acid, this ferric hydroxide and sulfides is hazardous and cause environmental problem. Okay student, so जो हमारी सोयल है उसके अंदर सल्फाइड्स मिनरल ग्रुप्स हैं, तो जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ हजार्डस और कोज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. ओके, लेट्स सी द लास्ट group of minerals, which is metal. The rock which contain metal like aluminium and iron, when it came in contact with oxygen or water, they converted into metal oxides. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोई आयरन, जैसे हम कभी घर बनाते हैं तो उसमें यूज़ होने वाली आयरन है, मतलब लोहा सरिया यूज़ होता है, उसको हम 1-2 दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम कहते हैं आयरन रस्ट हो जाना. ठीक है ना. वो क्यों होता है? जब वो आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जो मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है. ये मतलब मेटल को वीक कर देता है. अब जो रॉक जिसके अंदर आयरन एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स होंगी तो वो क्या होगा, ईजिली इरोड हो जाएंगी जैसे ही वो आउटर एटमॉस्फेयर में वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा. ओके,
So on the basis of mode of formation our earth is divided into 3 rocks, जैसे igneous rock, sedimentary rock और metamorphic rock. So classification of rock on the basis of mode of formation. So igneous rock, first one is igneous rock. Igneous rock is also known as volcanic rock. और मैग्मा रॉक. इग्निस रॉक कैसे फॉर्म होती है? मैग्मा कूल्ड एंड solidified और क्रिस्टलाइजेशन. जो मैग्मा होती है जब वो ठंडी हो जाती है वो सॉलिड हो जाती है फिर, ठीक है ना, और उसके क्रिस्टल बन जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन द हॉट मैग्मा कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड or crystallized, this type of rock is called as igneous rock. And our earth is made up of igneous rock. Igneous mean fire. ओके जब बिलियन ऑफ ईयर एगो जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई तो वो कैसी थी? एक हॉट बॉल की तरह थी, ठीक है ना. सो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हुई, अर्थ ठंडी हुई, ठीक है ना. जब वो मैग्मा ठंडा हुआ वो सॉलिडिफाइड हो गया और उसके क्रिस्टल बन गए तो उसको हम क्या कहते हैं? इग्निस रॉक कहते हैं, ठीक है. एंड ऑल टाइप ऑफ रॉक which present on our earth is made up of igneous rock. जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, जितनी भी तरह की रॉक प्रेजेंट हैं वो हमारी इग्निस रॉक से इग्निस रॉक से ही बनी है, इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. एंड वी ऑल्सो नोन एज पेरेंटल रॉक. ओके स्टूडेंट्स, let's see the sedimentary rock. ओके जैसे मैंने आपको बताया ही है, जितनी भी तरह की रॉक्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पे वो इग्निस रॉक से ही मिलकर बनी है, ठीक है ना. जैसे ये हमारी अर्थ की क्रस्ट पे ये माउंटेन है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर हैं, ठीक है.
अब यहाँ पे मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से और ये जैसे ऐसे ही हमारी अर्थ की क्रस्ट पे आ रहा है, ये ठंडा हो रहा है और सॉलिडिफाइड हो रहा है और इसके क्रिस्टल बन रहे हैं, ठीक है। बट जब ये हमारी अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट पे आता है तो ये सन को एक्सपोज होता है। जब ये हीट डायरेक्टली इस पर पड़ती है तो इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, जिससे ये एक्सपेंड हो जाता है और एट द टाइम ऑफ नाइट इट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो जिससे ये साइमल्टेनियसली रिपीटेड कंप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये इग्निस रॉक जो है वीक हो जाती है और ये स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में टूट जाती है। ओके, अब सपोज करो यहाँ से एक रिवर बह रही है, वो रिवर क्या करेगी, इस रॉक को वो अपने वाटर के फ्लो से साथ ले जाएगी और इसको डिपॉजिट करेगी। कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, जहाँ पर अर्थ की जो मतलब ये रिवर है इसकी वेलोसिटी है वो वीक हो जाएगी। सपोज करो इसको यहाँ पे डिपॉजिट करेगी वो। सो डिपोजिशन इज़ अ नॉट वन डे प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, ईयर्स लग सकते हैं कहीं। तो ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ओके, अब रिवर अपने साथ रॉक के साथ क्या लाएगी, मतलब जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको भी ले आएगी, ठीक है ना, प्लांट्स को ले आएगी, वो उनका भी डिपोजिशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। सो जैसे एक लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा निचली लेयर्स का, क्योंकि ओवरलाइंग लेयर्स की वेट, सोइल की वेट की वजह से कंप्रेस होती चली जाएगी। ओके, सो कंप्रेशन ठीक है। अब जब कंप्रेशन की वजह से जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, जो निचली लेयर्स है, ठीक है ना। अब जैसे वाटर नहीं है, मतलब रिवर में पानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सन की रेडिएशन से वाटर को एब्जॉर्ब कर, वाटर वॉश आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीमेंटेशन हो जाएगी। सो कंप्रेशन एंड सीमेंटेशन of soil is called as lithification. सो ऐसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है लेयर बाय लेयर। अब जैसे वाटर के साथ क्या कोई लिविंग थिंग आ गई, जैसे मतलब प्लांट आ गया और एनिमल्स आ गया, तो उनका भी डिपोजिशन हो जाएगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये किस में बदल जाएगा, मिनरल्स में बदल जाएगा, लाइक कोल और पेट्रोलियम। सो सेडिमेंट्री जो रॉक है उसमें हमें क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोनिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो इग्निस रॉक के अंदर हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं ना, फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी, और वो प्राइमरी रॉक है, इग्निस इज़ अ प्राइमरी रॉक, जब इग्निस रॉक बनी थी तो हमारी अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। अगर जो लाइफ होगी भी तो जो लावा है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। तो कोई भी लिविंग थिंग होगी, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, वो क्या होगा, बर्न आउट हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, सो वी डन विद सेडिमेंट्री रॉक। ये हम ओवरव्यू देख रहे हैं, इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। हम इंडिविजुअली इनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द मेटामॉर्फिक रॉक। सो व्हाट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, जैसे सेडिमेंट्री रॉक है,
हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इग्निस रॉक है, ठीक है ना, इग्निस रॉक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन वो है हमारे एटमॉस्फेयर पे मीडियम है, जैसे सोयल है, जैसे एयर एक मीडियम इरोजन